Hello students, welcome to my last minute revision video. Today I am going to start with the simple sum of consignment just to understand the concept which we have learned in the previous videos. That means I showed you the format entries of consignment in previous first two videos. Now we are going to learn the concept of how to post those entries and how to settle the accounts. Clear? Let's start. First I am going to read out the sum. Mr. A sent 1000 bags to Mr. H at a rate of rupees 700 per bag and spent rupees 25,000 on freight. H spent rupees 30 to 500 for carriage and sold entire for rupees 10 lakhs. He is entitled to commission at the rate 10%. He remitted the balance, prepare consignment account and H account. Now students, as I told you earlier, that consignment account will come into the picture of consignor only, and here they have asked you to open consignment account and H account. First of all, we'll define who is A and who is H. Here, as A is sending goods to H for selling purpose, then Mr. A is the owner of the goods, so that means he is the consignor. सो यहाँ पे ओनर जो है ए ही इज अ कंसाइनर. सो ये बेसिकली जो दोनों अकाउंट्स है वो ए के बुक्स में चल रहे हैं, राइट. सेकंड किसका अकाउंट पूछा है? एच अकाउंट. एच अकाउंट मतलब कंसाइनी बिकॉज ही हैज अपॉइंटेड एच एज एन एजेंट. दैट मीन्स हियर एच इज नथिंग बट द एजेंट. सो यहाँ पे ये जो दोनों अकाउंट्स हम लोग दिखाएंगे वो कंसाइनर के बुक में दिखाएंगे, दैट इज ओनर के बुक में दिखाएंगे. सो आई रिपीट स्टूडेंट्स, कंसाइनमेंट अकाउंट विल कम इनटू द पिक्चर ऑफ कंसाइनर ओनली. ये अकाउंट कंसाइनी के बुक में नहीं आता है. एंड सेकंड अकाउंट यू आर गोइंग टू ओपन इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर इज एच, दैट इज कंसाइनी का अकाउंट. ओके, कंसाइनर के बुक में कंसाइनी का अकाउंट, कंसाइनी के बुक में कंसाइनर का अकाउंट. क्लियर? नाउ लेट अस स्टार्ट. First, A sent 1000 bags to H at the rate of rupees 700. So that means what? यहाँ पे Mr. A is sending goods to Mr. H. तो फर्स्ट हमारी एंट्री गुड्स डिस्पैच की एंट्री क्या है? तो हमारी फर्स्ट एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. ये हमारी फर्स्ट एंट्री थी व्हाइल डिस्पैचिंग गुड्स, व्हाइल सेंडिंग गुड्स इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर. तो हम लोग अभी यहाँ पे कंसाइनर के एंगल से ही देखेंगे सारे एंट्रीज, कंसाइनर के एंगल से देखेंगे ही नहीं. तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. तो पोस्टिंग विल बी ऑन डेबिट साइड ऑफ कंसाइनमेंट. सो हियर आई एम गोइंग टू राइट टू goods sent on consignment account, right? In bracket I'll mention 1000 bags at the rate of rupees 700, right? At the rate of 700 each. So that means यहाँ पे total amount will be 7 lakhs. Okay, so 1 lakh into 700 gives you 7 lakhs. Now इसका सेकंड पोस्टिंग नहीं आएगा because we have not opened goods sent on consignment over here. If you want I can prepare over here, but यहाँ पे अगर सेकंड अकाउंट होगा मतलब गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट होता तो हम लोग इसका सेकंड पोस्टिंग यहाँ पे क्रेडिट साइड में कर देते. क्लियर? नेक्स्ट, and spent rupees 25,000 on freight. Now who has spent this amount? Mr. A only. That means while sending those goods, he has spent rupees 25,000 on freight. So that means what? इसके हाथ से क्या चली गई? Cash, right? And I told you students, whenever expenses and loss will be there, he will give debit to consignment account because consignment is a nominal account. I told you in the video. So that means what? Consignment अगर nominal account है, तो by the rule of nominal, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स. तो जहां पे एक्सपेंस होता है, जहां पे लॉस होता है, हम लोग कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे. सो फॉर दिस द एंट्री विल बी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट बिकॉज ये उसका खर्चा है एंड गई क्या उसके हाथ से? कैश. सो कंसाइनमेंट टू कैश. सो द नेक्स्ट एंट्री विल बी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट. तो अगेन पोस्टिंग विल बी ऑन डेबिट साइड टू कैश अकाउंट. अमाउंट इज 25,000. In bracket I'll just mention freight. Again, no posting will be done on credit side because we want open cash account over here, right? तो कैश अकाउंट अगर होता तो हम लोग कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में यही पोस्टिंग दिखा देते. तो ओनली सिंगल पोस्टिंग. नेक्स्ट,
H spent rupees 32,500 for carriage and sold the entire for rupees 10 lakhs. Now students, यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन है इसी स्टेटमेंट में, तो हम लोग विल सी वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैपेंड, H अभी गुड्स इसके पास आ गए, H के पास, तो H हैज स्पेंड रुपीज 32,500 फॉर कैरेज, मतलब कैरिंग के लिए उसने कितना खर्चा किया, 32,500. बट दिस टाइम हु हैज स्पेंड दिस, H, मतलब कंसाइनर स्पेंड किया है, राइट. बट हमें तो कंसाइनर के एंगल से सोचना है, तो सिंपल है, इवन इफ H हैज स्पेंड द अमाउंट बट रिइंबर्समेंट उसे किससे मिलेगा, A से ही मिलेगा, बिकॉज ही इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ A. तो दैट मीन्स व्हाट, A क्या करेगा, A विल गिव डेबिट अगेन टू कंसाइनमेंट. वाई, बिकॉज ये अल्टीमेटली एक्सपेंडिचर किसका है, खर्चा किसका है, A का ही तो है, राइट. तो हम लोग क्या करेंगे, कंसाइनमेंट को डेबिट दे देंगे. बट दिस टाइम एज कैश A के हाथ से नहीं चली गई है, तो हम लोग कैश को क्रेडिट नहीं करेंगे. इंस्टेड ऑफ कैश हम लोग क्या लिखेंगे, टू H. सो द फाइनल एंट्री विल बी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू H अकाउंट. जब ये पेमेंट करता है तो हम लोग बोलते हैं कंसाइनमेंट टू कैश. बट जब अगर कंसाइन ही पे करता है तो यही इस कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू H, मतलब कंसाइनिंग. ओके, सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू H. इन ब्रैकेट आई मेंशन कैरेज. अमाउंट कितनी है, 32,500, राइट. नाउ यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम लोग डबल पोस्टिंग करेंगे बिकॉज वी हैव ओपन H अकाउंट एज वेल. तो यहाँ पे डेबिट, तो यहाँ पे आएगा क्रेडिट बाय कंसाइनमेंट अकाउंट. अमाउंट इज 32,500. इन ब्रैकेट विल मेंशन एक्सपेंसेस या कैरेज, अब जो भी बोलो. डाउन नेक्स्ट, एंड सोल्ड एंटायर फॉर रुपीज 10 lakhs. नाउ यही H ने बाद में क्या किया, सारा गुड्स था वो 10 लाख के लिए बेच दिया. तो अगर बेच दिया है तो अगेन वी हैव टू थिंक फ्रॉम कंसाइनर पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज दोनों भी अकाउंट किसके बुक में, कंसाइनर के बुक में. तो लेट अस स्टार्ट. क्या होगा, अभी ये पैसा किसके पास आएगा, H के पास आएगा. तो दैट मीन्स H से पैसा आना बाकी है A को. तो फॉर A, H विल बी हिज डेटर. आई रिपीट, फॉर A मतलब ओनर के लिए अभी H क्या होगा, उसका वो डेटर होगा. सो ही विल गिव डेबिट टू H, राइट, बिकॉज ही विल बिकम डेटर नाउ. सो H अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट किसे देगा, कंसाइनमेंट को क्रेडिट देगा. बिकॉज द थिंग इज दैट यहाँ पे जब गुड्स सेल हो जाएंगे उसको प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा, प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा. सो वेन एवर देर इज गेन हम लोग कंसाइनमेंट को क्रेडिट करेंगे एज दिस इज नॉमिनल अकाउंट. सो द अल्टीमेट एंट्री विल बी H अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, H अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट. सो दैट मीन्स कंसाइनमेंट को दिस टाइम हम लोग क्रेडिट करेंगे बाय H अकाउंट. In bracket I'll mention sale. Total amount is 10 lakhs. Right? यहाँ पे क्रेडिट तो यहाँ पे डेबिट. So here I'll write to consignment account. In bracket I'll mention sale. Amount is 10 lakhs. Hope you understood. Now next. He is entitled to commission at a rate 10%. Now ये जो कमीशन होता है स्टूडेंट्स, दैट यू आर गोइंग टू कैलकुलेट ऑन सेल अमाउंट. नो यहाँ पे सेल अमाउंट कितनी है, 10 lakhs. 10 lakhs पे 10%, तो डिलीट लास्ट जीरो, यू विल गेट 10% ऑफ दैट अमाउंट. तो 10 lakhs का अगर लास्ट जीरो आप अगर कट करोगे तो यू विल गेट 1 lakh. सो 1 lakh इज द 10% ऑफ 10 lakhs. क्लियर हाउ टू कैलकुलेट. अदरवाइज अगर नहीं आ रहा है तो आप सीधा ट्रेडिशनल मेथड से जाइएगा, 10 lakhs into 10 by 100, बिकॉज 10% बोला है. सो ये कट होगा, ये कट होगा, ये कट होगा, ये कट होगा. देखो अल्टीमेटली विल गेट द सेम अमाउंट 1 lakh. सो दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे आपका कमीशन आ रहा है 1 lakh. नाउ ये जो कमीशन है ये मिस्टर ए इज लायबल टू पे टू मिस्टर H. सो व्हाट विल बी द एंट्री, अगेन सिंपल, अगर A को देना है कमीशन तो उसके लिए तो खर्चा ही है. सो अगेन ही विल गिव डेबिट टू विच अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट. सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट. नाउ ये जो कमीशन का एंट्री हम लोग पास करेंगे दैट इज ऑन ड्यू बेसिस, नॉट येट पेड. ओके, इट इज पेएबल बाय A एंड इट इज रिसीवेबल बाय H. तो अभी तक ना इसने पे किया है ना इसने रिसीव किया है, ड्यू बेसिस की एंट्री हम लोग पास कर रहे हैं, तो इसलिए कैश अकाउंट विल नॉट कम इनटू द पिक्चर. तो एंट्री क्या आएगी, सिंपल है, A के लिए तो खर्चा है
तो ए विल गिव डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और किसे देना है कमीशन? एच को। सो एच विल बिकम हिज क्रेडिटर, जिसे पैसा देना होता है वो पर्सन आपका क्रेडिटर बन जाता है। तो आपकी एंट्री हो जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू एच अकाउंट। सो कंसाइनमेंट के डेबिट में आई राइट टू एच अकाउंट, in bracket I will mention 10% on sales, and here I am going to write the amount as 1 lakh. Right? Now यहाँ पे डेबिट, तो it goes without saying कि H के यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे. So here I am going to write by consignment account, in bracket I will mention commission, and amount will be 1 lakh, because दोनों भी अकाउंट्स कंसाइनर के बुक में ही है. क्लियर? देन व्हाट दे हैव मेंशन, ही रेमिटेड द बैलेंस, मतलब रिमेनिंग अमाउंट जो भी एच के पास थी वो सब कट करके, मतलब उसके एक्सपेंसेस, उसका कमीशन कट करके उसने किसको दे दी? इसको दे दी, ए को दे दी. सो वो भी हम लोग अकाउंट करेंगे, मतलब वो भी हम अमाउंट निकालेंगे. प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड एच अकाउंट, दैट मींस हियर एंड्स. तो अभी फाइनल सेटलमेंट का बचा है, तो स्टार्ट करते हैं. अभी क्या करेंगे, फिलहाल पहले हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे, उसका प्रॉफिट या तो लॉस. सो फर्स्ट यू नीड टू क्लोज कंसाइनमेंट अकाउंट ओनली. तो यहाँ पे लिखिए 10 लाख क्रेडिट में अमाउंट है, डेबिट में लिखिए 7 लाख प्लस 1 लाख 8 लाख, 8 लाख प्लस 32,500 8 लाख 32,500, एंड 8 लाख 32,500 प्लस 25,000. सो दैट गिव्स यू 8 लाख 42, 8 लाख 52 and 8 lakh 57,500 addition. So debit costing is 8 lakh 57,500, credit costing is 10 lakhs. So I'm just going to calculate the balancing figure. 10 lakhs minus 8 lakh 57,500, right? So that gives me 1 lakh 42,500. So that gives me 1 lakh 42,500. सो यहाँ पे कम पड़ रहा है. सो हियर आई एम गोइंग टू राइट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बैलेंसिंग फिगर नहीं है, टू बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखना है. हम लोग प्रॉफिट निकाल रहे हैं या तो लॉस निकाल रहे हैं. अगर डेबिट में आ रहा है, मतलब इफ क्रेडिट कास्टिंग इज मोर, तो यहाँ पे प्रॉफिट है. तो हियर आई विल मेंशन टू पे एंड अकाउंट, इन ब्रैकेट आई विल मेंशन बैलेंसिंग फिगर, एंड अमाउंट विल बी 1,42,500. And then this amount will this account will get closed for rupees 10 lakhs. क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक यूजुअल मिस्टेक हो जाती है कि आप लोग यही अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हो, बिकॉज ये आदत होती है हमारे फाइनल अकाउंट्स में हम लोग करते हुए, ट्रेडिंग के बाद पीएनएल के बाद बैलेंस शीट. बट यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बिकॉज थिंग इज यहाँ पे आपने क्या लिखा है, टू पीएनएल अकाउंट. मतलब ये अमाउंट कहाँ पे जाएगी? पीएनएल अकाउंट अगर होगा तो ही जाएगी. हमारे यहाँ पे अमाउंट क्या है, अकाउंट क्या है, एच अकाउंट है, तो ये अमाउंट यहाँ पे नहीं आएगी. क्लियर? यहाँ पे उसे छोड़ देना है. फिर इसका क्या करेंगे? सिंपल है. अमाउंट कितनी थी? 10 लाख. यहाँ पे 10 लाख है, यहाँ पे एडिशन कितनी है? ये 1 लाख का कमीशन है, ये 32,500 का उसका एक्सपेंसेस है. सो 10 लाख में से 1,32,500 हम लोग डिडक्ट करेंगे, एंड ही हैज रेमिटेड द बैलेंस, मतलब रिमेनिंग अमाउंट ही हैज रेमिटेड, हम लोग एज्यूम करेंगे कि वो कैश में दे रहा है. सो जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके लिए हम लोग लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ बाय बैलेंस कैरी डाउन विल राइट बाय कैश, मतलब वो कैश में दे रहा है, इससे हम लोग एज्यूम करेंगे. तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बाय कैश स्लैश बैंक, सेफर साइड दोनों लिख देते हैं, in bracket balancing figure, right? So now 10 lakh में से 1 lakh है 9 lakh, 9 lakh में से 32,500 गए, तो 9 lakhs minus 30, so that gives you 8,70,000 and 2,500, so that gives you 8,68,500. So here I'll mention 8,68,500. One second, 9 lakhs minus 30, 8,67,500. So sorry, 8,67,500. And this account will get closed for 10 lakhs.